W- Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 1 of Cost Accounting. In this session, we are going to cover Cost Accounting Introduction, Functions of Cost Accounting, Objectives or we can say Objects of Cost Accounting and Classification of Cost. Right? So first we will introduce what is Cost Accounting. Let's see Cost Accounting क्या है. Cost accounting basically it's the process of tracking, recording and analyzing cost associated activities of an organization. Organization में जितने भी cost related activities हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है cost accounting में. That means all cost transactions will be recorded in cost accounting because each and every activity in the organization involves cost. Right? So here basically costing जो term हम use करते हैं it refers to the technique and the process of ascertaining cost. It consists of principles and rules which are applied for ascertaining the cost of the products manufactured and the services rendered. And cost accounting basically it's the process of accounting for cost. That means कॉस्टिंग में हम करते हैं कि जितनी भी फर्म में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है या सर्विसेज जो दी जा रही है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को तो उनके ऊपर कॉस्ट क्या लगती है फर्म की. सो इट बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें कि हम कॉस्टिंग को इंक्लूड करते हैं. यहाँ पर हम दो चीज़ों को इकट्ठे ले सकते हैं जैसे कि कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. राइट. सो कॉस्टिंग बेसिकली इट इनकॉर्पोरेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स relating to the production of goods and services and it provides statistical data on the basis of which future estimates can be done or future estimates may be prepared. So cost accounting is a branch of accounting that deals with classification, recording, allocation, summarization and reporting of current and prospective costs and analyzing their behavior. So cost accounting में हम basically ये एक accounting का ही part है. Right? There are basically various branches of accounting that in which we include financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, responsibility account, social responsibility accounting. तो ये सभी accounting की branches है. तो उसमें से हम एक branch we are understanding one of them that is cost accounting. तो जिसमें हम cost को different categories में classify करते हैं and we record those cost in cost statements or we can say cost sheets. एलोकेशन दैट मीन्स कि हम जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं जिसमें हम एलोकेट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है एंड वी कैन समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. वी प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर द करंट कॉस्ट इनकर्ड एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर कॉस्ट so that we can analyze कि future में firm को क्या cost लग सकती है if that organization go for producing or adding a new product or new product line in the organization. Now see the functions of cost accounting. अब देखिए functions में सबसे पहला function है external reporting. right? तो cost accounting help करती है external users को information देने में जिससे कि पता चल सके इन्वेंट्री कितनी है क्या उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है. राइट. सो बेसिकली द की टास्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इज टू कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर अ कंपनीज एक्सटर्नल रिपोर्ट. तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो है वो फर्म के लिए एक्सटर्नल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जिससे कि एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग फर्म में किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कॉस्ट लग रही है. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर कॉर्पोरेट लेवल रिपोर्ट्स. कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा और द इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ
corporate level reports. These reports may include only trend lines of information about a few critical success factors. तो कॉर्पोरेट लेवल रिपोर्ट्स में उसमें मेंशन होता है कि हमारा कॉस्ट का क्या ट्रेंड लाइन है, जिसके बेस पे क्रिटिकल डिसीजंस और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. देन विद the help of cost accounting we can prepare business unit level reports. These reports must include a much larger quantity of information for the plant manager that needs to know about the operation of each department, as well as a host of operational issues such as the cost of quality, inventory turnover, machine utilization, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस. तो बेसिकली जो बिजनेस यूनिट लेवल रिपोर्ट्स हैं उसमें दिस इज मेंट फॉर द इंटरनल इंफॉर्मेशन. सो इन रिपोर्ट्स में ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्पेसिफिक जैसे पर्टिकुलर प्लांट के लिए, राइट. तो प्लांट मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके डिपार्टमेंट में क्या उसका क्वालिटी के ऊपर क्या कॉस्ट लगेगी, इन्वेंट्री टर्नओवर के ऊपर क्या कॉस्ट लगेगी, मशीन को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट लगेगी. तो ये रिपोर्ट्स जो है उसी के बेस पे तैयार की जाती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज द फंक्शनल लेवल रिपोर्ट्स. फंक्शनल लेवल रिपोर्ट्स बेसिकली दीज आर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स. तो हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट पर क्या कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर क्या कॉस्ट लग रही है, तो ये चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन होती है फंक्शनल लेवल रिपोर्ट्स में. सो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर functional level also. So these reports can be issued to individual departments or at lower levels, for example to the supervisors of individual machines. तो supervisors जो कि particular machine को handle कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कितनी cost incur हो रही है. Then is the decision specific reports. Decision specific reports are basically deals with the particular decision. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट लाइन में हमें न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है. दिस इज द स्पेसिफिक डिसीजन. तो उस प्रोडक्ट को ऐड करने में फर्म का क्या कॉस्ट लगेगी. सो दैट इज व्हाट डिसीजन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स. देन रिपोर्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक इश्यूज दैट अकर्स ओनली वंस आफ्टर विच द रिपोर्ट इज डिस्कार्डेड. तो जो ये डिसीजन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं ये एक स्पेसिफिक इश्यू को लेकर के रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये एक ही बार बनाई जाती है. जब वो डिसीजन ले लिया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है डिस्कार्ड कर दी जाती है. देन इज फॉर स्कोर कीपिंग. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कॉस्ट अकाउंटेंट probably issues more score keeping report cards than reports, right. तो cost accountants जो है वो scores भी provide करते हैं, उसके लिए score keeping report cards तैयार की जाती हैं rather than reports. Next is for budgeting, right. So budgeting it also helps in budgeting, right. The production budget, it includes estimated direct cost for each product the company expects to manufacture in the upcoming year, as well as estimated overhead allocations per unit based on expected production volumes, right. तो अगर हम लेकर के चले कि प्रोडक्शन बजट बनाया जा रहा है तो प्रोडक्शन बजट में क्या एस्टिमेटेड हमारी कॉस्ट होगी, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी फर्म की. दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल फर्म को कितना चाहिए पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में. लाइक से फॉर एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता है तो 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में फर्म को डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, राइट. तो दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट. तो बजट बनाने में भी, बजट प्रिपेयर करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि हम पर यूनिट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट. और दैट इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स. नेक्स्ट इज द कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस. On the basis of the information given under cost accounting, we can go for cost reduction analysis. That means how we can
reduce our cost, in what particular area, in what particular department we can reduce our cost, so that we can reduce all this overall production cost or overall cost of the organization. So this analysis we can also be done with the help of the information given in cost accounting. Next is the pricing function, right? Cost accounting का बहुत ही important function है, which is pricing function. Pricing function basically that means कि हम product की क्या price fix करें. तो product की price fix करने के लिए हमें चाहिए कि product के ऊपर cost कितनी आ रही है. Cost plus profit margin will be equal to price. That will be the price, right? So if we have the information about the cost of that product, and if we then we add our profit margin, then only we can fix up the price of particular product. So in the process of pricing also, it is also one of the crucial decision which is taken by the company, right? So pricing is, it's very much important. तो कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसी के बेस पे फर्म जो है वो प्राइस को फिक्स करती है. नाउ सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर फर्स्ट टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स कि फर्म जो है फर्म को प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगेगी. सो वी कैन एस्टिमेट or we can ascertain the cost of particular product and services. Second is to aid in the fixation of selling price. अभी हमने इससे पहले उसमें पढ़ा this functions में हमने देखा कि pricing जो है वो फिक्स की जाती है with the help of cost accounting, and this is also one of the objective of cost accounting. That means कि selling price क्या होगी product की, इस चीज़ को फिक्स करने में cost accounting help करता है, because it provide information to the cost account. Basically yes, cost accounting provide information to the cost accountants, right? कि क्या cost लगे, उसी के बेस पे हम selling price फिक्स करते हैं particular product का. Then it also analyze and classify the different elements of cost. So cost accounting, with the help of cost accounting, we can analyze and we can classify the elements of cost. That means there are different elements of cost: material cost, labor cost, overhead cost. तो हम identify कर सकते हैं कि firm को क्या cost लगेगी, और हम एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, देन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या फर्म को लगेगी, इनडायरेक्ट लेबर क्या लगेगी. तो ये चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड अप्लाई एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर चेकिंग द वेस्टेजेस, राइट? तो this is also one of the objective of cost accounting, to identify the causes of wastages. This we can do with the help of variance analysis. In that we analyze why standards are not उसी डायरेक्शन, मतलब हम स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली इन वेरिएंस एनालिसिस वी कंपेयर आवर स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट? So why there is a difference between standards and actual? तो वहाँ पर हम देखते हैं कि differences क्यों आ रहे हैं, deviations क्यों आ रहे हैं, wastages क्यों हो रही हैं. We can identify the wastages also through variance analysis, and we can apply the appropriate course of action. Then to control cost by analysis and comparison, this is also with the help of cost accounting we can analyze or we can control the cost, and we can compare our past cost जो कि इनकर हुई है उसको हम current cost के साथ compare कर सकते हैं, और standard cost को actual cost के साथ compare करके we can do the analysis. Next is to communicate to the management all information relating to cost and facilitate managerial decision making. तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे मैनेजमेंट को, ऑल इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट, जो कि हेल्प करती है मैनेजर्स को फर्दर डिसीजन मेकिंग करने में कि अगर
वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा कॉस्ट उसको इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या उनको आगे फर्दर उस प्रोसेस को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैनेजर्स को ये चीज़ हेल्प करती है। इसी तरीके से मेक और बाय डिसीजन में भी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि फर्म अगर खुद से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो उस पर कितना कॉस्ट आता है, और अगर वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स ही बाहर से बाय करती है तो उसके ऊपर उसका कितना कॉस्ट आता है, राइट। तो उसके बेस पे मैनेजर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं कि फर्म should go for make decision or it should go for buying decision. Then is to judge the relative efficiency of different departments, branches, products, units, plants and machinery. Yes, cost accounting it also appraise the efficiency of different departments, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, हर ब्रांच की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो कौन सा डिपार्टमेंट कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ज़्यादा प्रॉफिट्स दे रहा है फर्म को, वी कैन एनालाइज दिस ऑल्सो, वी कैन जज दिस एफिशिएंसी ऑल्सो, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग में पर यूनिट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। पर प्रोडक्ट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है तो उसमें पर प्रोडक्ट के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट सेंटर्स डिफाइंड होते हैं। कॉस्ट सेंटर्स में लाइक हम पर्टिकुलर प्लांट का या पर्टिकुलर मशीनरी की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट कितना है और कॉस्ट हमारी कितनी इनकर हो रही है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ हम कॉस्ट अकाउंटिंग से ही जज कर पाते हैं। Then to produce cost statements as and when required by the management for an interim review of production, right? So cost statements in the form of cost sheets we prepare under cost accounting, जो कि इंफॉर्मेशन देती है कि फर्म की प्राइम कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, राइट। तो ये चीज़ें हेल्प करती है मैनेजर्स को फॉर द इंटरिम रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Rest of the part we will cover in part 2 of the session. Thank you very much. Happy learning. We learn.